आज के इस लेक्चर में मैं आपको स्कैटरिंग मैट्रिक्स या एस मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये बात कि स्कैटरिंग मैट्रिक्स या एस मैट्रिक्स की नीड क्या है और इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि नाम है इसमें एस मैट्रिक्स मीन्स स्कैटरिंग मैट्रिक्स। तो स्कैटरिंग जो प्रोसेस है उसको तीन पार्ट्स में या तीन स्टेज में ब्रेक किया जा सकता है। पहला स्टेज इनकमिंग पार्टिकल, दूसरा इंटरेक्शन ऑफ इनकमिंग पार्टिकल विथ द टारगेट पार्टिकल्स, एंड थर्ड स्टेज द आउटगोइंग पार्टिकल। तो द प्रोसेस बाय विच द इनकमिंग पार्टिकल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू देयर इंटरेक्शन into the outgoing particles is called scattering. Scattering प्रोसेस एक तरह से इनकमिंग पार्टिकल का टारगेट पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन और उस इंटरेक्शन के रिजल्टेंट में अपन को आउटगोइंग पार्टिकल्स में क्या मिल रहा है, आउटगोइंग क्या मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। तो हम प्रत्येक पार्ट की प्रत्येक प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आउटगोइंग पार्टिकल्स के लिए क्या होगी, इसको एस मैट्रिक्स से हम जान सकते हैं। मीन्स इफ वी चेंज द एनर्जी ऑफ इनकमिंग पार्टिकल्स, देन what is the probability of different type of phenomena with the interaction of the target particle and what we get in outgoing side, और इसकी जो probability है उस probability को हम S मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं। तो S मैट्रिक्स is just you can say एक probability देता है कि किसी भी कोई भी फाइनल स्टेज स्पेसिफिक फाइनल स्टेज की प्रोबेबिलिटी क्या है जब आपको इनकमिंग स्टेट दी हुई है। तो हम एस मैट्रिक्स को डिफाइन करें तो S matrix is nothing but this is an operator whose matrix elements between initial state, that is denoted by phi I, and final state phi f, given a probability of obtaining specific final state psi f from a given initial state। एक दी हुई initial state से final specific जो state है उसकी probability क्या है, this is denoted by the S matrix। Also S matrix is nothing but it is an operator। तो S matrix को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि S इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट एंड t0 टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, एंड दिस ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय ut t0 और t0 is the initial state, represent the initial time, means आप कह सकते हैं कि ये बिफोर या इनकमिंग इवेंट्स को शो कर रहा है t0, एंड t इज द फाइनल टाइम और दिस रिप्रेजेंट द आउटगोइंग स्टेट। सो यू कैन डिफाइन द एस मैट्रिक्स लाइक दिस। अगर मान लीजिए इनिशियल स्टेट का टाइम आप t0 माइनस इनफाइनाइट लेते हैं तो फाइनल स्टेट का जो टाइम t इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट लेना पड़ेगा, और उस स्थिति में आप एस मैट्रिक्स को u इस तरह से भी लिख सकता है, u इनफाइनाइट एंड minus infinite. This is the definition of S matrix. So this is an operator which is defining this manner. If initial stage is psi t0 and final state is psi t, then using S matrix operator ut t comma t0, the final state from a given initial state is defined as
means if you want to define the final state from the initial state, then you can use the operator, that is S matrix, and you can write this is the final state and this is the initial state by using this operator ut comma t0. So this is the final state which is defined in terms of S matrix in this manner. This is number 2. And if you use the interaction picture, means evolution of time, time evolution of a state, evolution of a state with time, then you can write the interaction picture, or you can write the Schrodinger equation in this manner for the interaction picture. That is I h cross psi del over del t psi t equal to hit psi t. And for the infinitesimal evolution in time, you can write this psi t में अगर infinitesimal evolution हो रहा है तो you can write it psi t0 plus delta t. इस t0 initial state में जो एक evolution है, that is delta t, उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो. और you can expand this by using the binomial expansion as we previously as we know already. So you can write state side t0 plus delta t equal to u to t0 comma t0 plus delta t is del u over del t plus 1 over factorial 2 del square u over del t square plus and so on psi t0. So this is the evolution, infinitesimal evolution in the state. And keep in mind कि यहाँ हमने जो u लिखा है that is nothing but u t comma t0 ही है ये this one, और यहाँ initially this is u t0 comma t0 and this will be equal to 1. So you can write u t0 comma t0 equal to 1, then psi t0 plus delta t equal to 1 plus delta t del u over del t plus 1 over factorial 2 del square u over del t square plus and so on psi t0. Or after solving this, and you use the time limit because we already stated that the evolution of time is infinitesimally small, that means delta t tends toward 0. So you can write this expression in this manner, and by solving this you have the equation number 4, or by using this 4 in 3 you get equation number 5. So this is the evolution of the state, or you can say this is the time evolution of the state. और initial state है वो independent of time है, इसलिए आप इसको psi t0 को जो डिफरेंशियल प्रोसेसेस है उससे आउट कर सकते हैं. और आप जो अभी क्वेश्चन लिखा था दिस वन, इसको आप इस तरह से लिखें del u over del u t comma t0 इक्वल टू माइनस आई ओवर एच क्रॉस एच आई टी u t comma t0 डेल्टा t, और इसको t0 से t तक आप इंटीग्रेट करें तो आपके पास दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा. दिस इक्वेशन नंबर 6 यू कैन गेट बाय इंटीग्रेटिंग फ्रॉम t0 टू t. तो u t comma t0 इक्वल टू 1 माइनस आई ओवर एच क्रॉस t0 टू t एच आई टी 1 u t1 comma t0 del t1. यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि हमने इस टाइम इवोल्यूशन में डेल्टा t क्यों, t की जगह t1 क्यों यूज किया है. तो इसका रीज़न ये है कि स्टेट को हम टाइम के साथ इवेल्यूट दिखा रहे हैं. मतलब ये है कि इनिशियल स्टेट अगर t0 है तो नेक्स्ट होगा t0 प्लस डेल्टा t, दैट इज डिनोटेड बाय t1, और इसके बाद नेक्स्ट जो होगा t0 प्लस डेल्टा t, दैट इज डिनोटेड बाय t2. तो इस तरह से हम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट जो हम शो कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ टाइम जो स्पैन है उसको बढ़ाते जा रहे हैं या उसको चेंज करते जा रहे हैं.
और उसको चेंज करने की वजह से जो स्टेट बन रही है, यानी कि जो T0 प्लस डेल्टा टी आ रहा है उसको हमने T1 से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे ये u t कॉमा T0 इक्वल टू 1 माइनस आई ओवर एच क्रॉस T0 टू T एच आई T1 u T1 कॉमा T0 डेल्टा T, इस तरह से ये एक्सप्रेशन बनेगा। और यदि आप इस लिमिट को T0 टू T1 ले जाते हैं और यहाँ u t की जगह T1 कॉमा T0 लिखते हैं, तो आप यहाँ यह सिंबल एच आई T2 और u T2 डेल्टा u T2 T0 ये यूज करेंगे, और डेल T1 यानी कि डिफरेंशिएशन होगा वो डेल T2 पर होगा। इस तरह से हम लिखते जाएं तो ये इक्वेशन, आप नेक्स्ट जो इक्वेशन मिलेगा वो 8 नंबर इक्वेशन मिलेगा, जिसमें हमने u T2 कॉमा T0 लिख रखा है। तो इस प्रकार u t कॉमा T0 को अगर इन तीन टर्म्स को यूज करते हुए T0 T1 T2 इनको यूज करते हुए लिखें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं u t कॉमा T0 इक्वल टू 1 माइनस आई ओवर एच क्रॉस T0 टू T डेल T एच आई T1 1 माइनस आई ओवर एच क्रॉस इंटीग्रेशन फ्रॉम T0 टू T1 डेल T2 एच आई T2, और दिस विल बी 1 माइनस आई ओवर एच क्रॉस T0 टू T2 डेल T3 एच आई T3 u T3 कॉमा T0। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ये जो टाइम स्पान है, आपने जो T1 T2 T3 T4 इस तरह से अगर आप डेल्टा Tn तक जाएंगे तो एक जनरल इक्वेशन बनेगा, जो इक्वेशन सिमिलरिटी से इक्वेशन 9 की तरह होगा, जिसको हमने यहाँ लिख रखा है। तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर एवोल्यूशन ऑफ स्टेट या u t कॉमा T0 विथ द टाइम। तो आप इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T3 एंड सो ऑन, दैट इज ग्रेटर देन Tn माइनस 1 इज ग्रेटर देन Tn। तो हम इस तरह से इस ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। और ये जो टाइम ऑर्डरिंग है उसको हम न्यूमैन सीरीज की तरह से, न्यूमैन सीरीज की फॉर्म में, या जिसे अपन ब्रॉड में न्यूमैन आइडियो विले एक्सपेंशन कहते हैं, उस तरह से लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन को मान लें कि हम in let in इक्वल टू माइनस आई ओवर एच क्रॉस टू द पावर n T0 टू 2 डेल T1 T0 टू T डेल T1 T0 टू T1 डेल T2 एंड सो ऑन, इस तरह से करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं। और अब हमें इन ऑपरेटर्स को टाइम ऑर्डरिंग इनकी डिफाइन करनी होगी, यानी कि टाइम के ऑर्डरिंग में आपको इसको लिखना होगा। और उन सब को लिखने के बाद मैंने एक एक्सरसाइज लिखी हुई है। इस एक्सरसाइज को मैंने आपके नोट्स में, PDF नोट्स में अच्छे से दे रखा है और आपको मैं समझा चुका हूँ। और इन सब एक्सरसाइज को यूज करते हुए आप इस इंटीग्रेशन को, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 10 था, उस इंटीग्रेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं यूजिंग 39। तो आप u t कॉमा T0 को 1 प्लस माइनस आई ओवर एच क्रॉस T0 टू 2 डेल T1 टॉ इज द टाइम ऑर्डरिंग ऑपरेटर एच आई T2 प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस आई ओवर एच क्रॉस टू द पावर n 1 ओवर फैक्टोरियल n T0 टू T dt1 T0 टू T dt2 T0 टू T dtn टॉ एच आई T1 एच आई T2 एंड सो ऑन एच आई Tn, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इससे हम जो दूसरी टर्म्स हैं उनको भी निकाल सकते हैं कि I2 क्या होगा, I3 क्या होगा, वो मैंने एक एक्सरसाइज यहाँ कर रखी है। और ये जो इक्वेशन है फॉर दिस इज फॉर n इक्वल टू 2, और यहाँ पे हम T1 इज ग्रेटर देन T2 हो तब ये इक्वेशन होगा 15 और 15a, और T2 इज लेस देन T1 इज ग्रेटर देन T2 के लिए 15a और 15b, T1 इज लेस देन T2 के लिए ये होगा। तो हम
इस तरह से अगर लिखना चाहें इस इक्वेशन को, तो एस मैट्रिक्स हमने डिफाइन कर रखा है। आई एन को यूज करते हुए अगर हम एस मैट्रिक्स को लिखना चाहें, इट मीन्स नाउ टेकिंग द लिमिट ऑफ इक्वेशन नंबर 14, T0 को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की लिमिट में लिख दें तो ये एस मैट्रिक्स बन जाएगा। और एस मैट्रिक्स को आप फिर इस तरह से लिमिट T0 टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट एंड T0 टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट की फॉर्म में u t T0 इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस आई ओवर एच क्रॉस टू द पावर n 1 ओवर फैक्टोरियल n माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट dt1 माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट dt2 एंड सो ऑन, इस तरह से एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट dtn टॉप hi t1 hi t2 एंड सो ऑन hi tn। इस तरह से हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन। और यदि h जो है वो हैमिल्टनियन डेंसिटी हो तो आप ये dt1 dt2 ये सब 4 डायमेंशनल स्पेस में चला जाएगा। इट मीन्स आप इसको लिख पाएंगे x1 x2 x3 एंड x4 और उस फॉर्म में आप लिखें तो ये HIT1 हैमिल्टनियन डेंसिटी बन जाएगा। और यदि आप h को करली h से रिप्लेस करें और t को x14 से रिप्लेस करें तो आप इस इक्वेशन 16 को इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वेशन 17 की तरह। तो ये जो इक्वेशन 16 और इक्वेशन 17 है ये एस मैट्रिक्स का डायसन एक्सपेंशन कहलाता है, डायसन एक्सपेंशन ऑफ एस मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में आपको एस मैट्रिक्स क्या है, इसकी नीड क्या है, डेफिनेशन सिंपली एस मैट्रिक्स एक ऑपरेटर है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इस एस मैट्रिक्स का एक्सपेंशन मीन्स 2 टॉपिक को क्लियर करते हुए मैंने आपको ये एस मैट्रिक्स समझा दिया है, यानी कि कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू।